15, Mr. Dr. Anand Kumar. Yes. The notice were have already been issued, my lord. Additional payment of rupees. कौन है? हाउसिंग बोर्ड है फिर से. है ना सर, हाउसिंग बोर्ड. हाउसिंग Come to internal page 4. आपको बता रहे हैं देखिए, ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना. गाइस, अगर ये कहे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है तब उसके समय एग्रीमेंट अगर हुआ है तो इन दी इंटरेगनम वो एस्केलेशन कॉस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी गलती नहीं. लेकिन हमेशा ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अगर टाइम लगा तो उसके लिए उसमें एग्रीमेंट. लेट अस सी द एग्रीमेंट ऑफ 1999. My lord. Have you brought it on record? Was it on record before the single judge? My lord. Show us. You are appearing for the respondent. I get respondent. LOT. But what grounds have you raised, Mr. My lord, Anand Kumar, for limitation 1 year 202 days? Almost 2 years. Why should we entertain this petition? Let us see the grounds that you've taken. 90 days delay, madam. नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 1 साल 202 दिन. Limitation petition, my lord, page 27. हाँ, तो क्या लिखा है उसमें आपने? अच्छा, uploaded on 3/19, finally received in the office of the board 29/1/2020. चलिए इसको भी मान लें. और कब फाइल किया आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं है. कैसे लिख दिया इसमें? 90 डेज का लिमिट. वो पहला वाला रीट से देख के लिखे होंगे. हाँ, वो एंडोर्समेंट यहाँ पर 1 साल का नहीं है. ऑल राइट, वी कंडोन दिस डील. My lord, my lord. हाँ, बताइए सर. You will be required to answer. We find that there is some fallacy somewhere in the order. You know, merely because you have entered into an agreement on 8/2/1999, My lord. that does not absolve you from the responsibility of making payments of the escalation charges. It will be dependent on the nature of agreement, number one. And number two, if the agreement was executed at the time when the entire construction was over, you were justified in not giving the escalation cost, because it is not because of your fault. But if the construction was still going and you entered into an agreement and you agreed for payment of escalation cost, we can't stop the housing board from charging the same. Though they have been unnecessarily fleecing the allottees, we know, and therefore I was looking for some ground of dismissing the petition on grounds of limitation. My lord. कैसा agreement है? दिखाइए, agreement दिखाइए हमें. My lord, running page 68, my lord. The annexure 1 was the advertisement. हमें जो चाहिए वो दिखाइए ना. एडवर्टाइजमेंट से कहाँ My lord, my lord. हमें कोई उससे डिस्प्यूट तो है नहीं, मिस्टर आनंद कुमार. Page 68, my lord. Annexure 2. Running page 60 68. पेज की तो पिटीशन ही है. 68, 68 कहाँ ले 69. गए आप?
हिंदी में होगा मैडम। नहीं, वो पेजिंग गलत है बंधु। रिट पिटिशन में 60 पेज की पिटिशन ही है, आप 68 पे कहाँ पहुंच जाते हैं? उसका रीट में एनेक्चर माइलॉर्ड होगा। अनेक्चर की बात है, कंप्लीट वकालतनामा तक पेज 61 है, 68 कहां से पहुंचा दिया आपने? देख कर आइए मिस्टर आनंद कुमार, फाइंड आउट एंड टेल अस, वी नीड टू सी द एग्रीमेंट। if it is not there on record, we need to see that. That is the only way in which we can either justify the settling of that escalation cost or their refusing to pay the same. माइलॉर्ड एग्रीमेंट इज नॉट देयर। देख कर आइएगा मिस्टर, क्या नाम है आपका? Annexure 5, Annexure 4 is आप Milord. ये पहले देख कर आइए कि अग्रीमेंट के तहत, बहस करने का जगह मैं आपको दे रहा हूँ, एग्रीमेंट के तहत अगर ये एस्केलेशन कॉस्ट की बात होगी और उस वक्त आपने एग्रीमेंट किया जिस वक्त बिल्डिंग कंप्लीट हो गया था, तो एस्केलेशन कॉस्ट ही नहीं चार्ज कर सकते। ना इनका हुजूर Annexure 8 देखा जाए ना, इनका एक ही ग्राउंड है। आपको जगह हमने दिया बहस करने का, तो आप देखा जाए कर दिया, एग्जामिन इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। You want to win the case or you want to lose it? We have prima facie found some fallacy in the single judge's order. This could be done away with only by proper reference to the agreement. देख कर बताइए, आप समझ गए आपको हमने क्या कहा? देखा जाए ना, आप वो आर्गुमेंट आपके कंटेम्पलेशन में नहीं था। आई हैव टोल्ड यू, गेट रेडी ऑन दैट, डोंट गिव अ ब्लैंक फेस सर, एटलीस्ट give an expression that you have understood what the court has communicated to you. आइएगा, कब पढ़ के आएंगे? कब रखिएगा? कब सर पूछ रहे हैं कि कब रखा जाए पर हियरिंग? कब देख कर आएंगे एग्रीमेंट को? हमने क्या कहा समझा आपने? मैं इस ऑर्डर को अभी चेंज करने के चक्कर में हूँ, आपको इसलिए समय दे रहा हूँ कि पढ़ के आइए। आपने ही उसको एंटिसिपेट किया होगा, तो ये कोर्ट का व्यू आपके लिए बहुत नया व्यू हो जाएगा, इसलिए हमने समय दिया है। बात ही नहीं समझ रहे हैं, क्या कहें? जिस वक्त अग्रीमेंट एंटर किया था आपने हाउसिंग बोर्ड के साथ, उस समय बिल्डिंग की स्टेटस क्या थी? पीस ऑफ लैंड था, बिल्डिंग नहीं था। तो फिर एस्केलेशन कॉस्ट देंगे आप? तो फिर एस्केलेशन कॉस्ट देंगे आप ना? इनका ग्राउंड है कि चूंकि ग्राउंड कुछ भी हो, देखिए आपको जगह मिलेगा, एग्रीमेंट देखिएगा पहले, देख कर आइए। this time is being given to you for you to make some work because you are a weaker party. We always go by the doctrine of contra pro frontem. He is a stronger party. Housing board, he has been freezing money from the allottees. तो थोड़ा आप देख कर आइए, प्रिंसिपल बनाइए, देखिए क्या कर सकते हैं। सारी मदद मैं ही नहीं करूंगा आपकी। हाँ, चलिए, कब समय दिया? As prayed for on behalf of the respondent, re-notify this case on Monday. 27 जून। समझ गए ना? एस्केलेशन क्लॉज के लिए अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अग्रीमेंट है, तो फिर एंटाइटलमेंट है उसकी। उस वक्त आपने कम पैसे में ले लिया होगा, टाइम आगे बढ़ा, उसमें अगर इन्होंने लिखा, ये सब देखिएगा उसमें एग्रीमेंट में, कि अगर कहा होगा कि मैं 2 साल में बना कर दे दूंगा, और 2 साल के बजाय 3 साल अगर कर दिया, तो वो 1 साल का उसमें वो क्या कहते हैं उसको, वो डिडक्शन होगा। उस हिसाब से एस्केलेशन का कॉस्ट क्या है, प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने उस बात को ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है, ये टोटल चीज आपको एग्जामिन करना है। एस्केलेशन क्लॉज है, अगर बिल्डिंग बनी रहती तब ये दूसरे तरीके से लेते, तब आप ट्रांसफर करते रहते तो लाभांश करके लेते ही, अनजस्ट इनरिचमेंट। आपने खर्च किया 50,000, बेचा उसको 25 लाख में, उसकी लाभांश देनी पड़ेगी, है ना? ये एस्केलेशन कॉस्ट है, ये जैसे बिल्डर के साथ करते हैं आप। आपका लैचेस से मतलब नहीं ना है, बिल्डिंग उस समय बनी थी, आपका कॉस्ट कम था। अगर इनका अश्योरेंस होता कि 2 ही साल में हम बना कर देंगे। बिल्डिंग का डिस्प्यूट नहीं है, पीस ऑफ लैंड का, ओनली पीस ऑफ लैंड का है। ऑल द मोर ना, तो पीस ऑफ लैंड आपको दे दिया था इन्होंने, तो उसमें क्यों एस्केलेशन होगा? उसमें तो हुजूर एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद केवल लैंड के लिए है, बिल्डिंग के लिए नहीं है। बाद में बनाया तो फिर
बनाया है। अरे ओके चलिए हाउसिंग बोर्ड का मतलब क्या है? जमीन थोड़ी बेचते हैं ये, वो तो अपने से बनाना था, हाउसिंग बोर्ड को नहीं बनाना था, केवल लैंड आपको देना था। केवल ऐसा नहीं हो सकता है। देखें जरा क्या है, आप बड़ा मुश्किल है। देख कर आइएगा मिस्टर आनंद कुमार। मालूम।